What is the average period formula? Jainish will tell me. What is the average period formula? Jainish को बोला तो Jainish ने कैमरा ही बंद कर दिया. Jainish, I am talking to you, stupid. This is not a way that you are responding to me in here. Jainish, but Yes, sir. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुछ. What is the average period formula, बेटा? तो हमने पढ़ा था फॉर्मूला, आपने समझ कैसे की है? Jainish, you have an answer? Shubh, what is the formula? Sir, month left after first drawing plus month left after last drawing divided by 2. And that's the answer. Months left after first drawing plus month left after the last drawing divided by 2. So this question arises, Vinith, in here, how many months left after the first drawing? हवा में गोलीबार करना आता है आपको अच्छे से. यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसको स्टिक रहिए बेटा. विनीत, what is the month left after the first drawing, बेटा? When we have done the first drawing, एक ही बात कर रहे हैं हम, और किसी की बात नहीं कर रहे हैं. अप्रैल. अभी अब मार खाओगे. मैं बोल ही रहा हूँ कि इन लोगों ने फॉर्म स्टार्ट की है 1 अक्टूबर 2019 को. देखो यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट ही हुई लेट बेटा. कहाँ अप्रैल आया? अक्टूबर 1 अक्टूबर ही स्टार्ट हुआ है, बिजनेस ही स्टार्ट हुआ है अक्टूबर में. तो अप्रैल से कभी ड्राइंग करेंगे? फॉर्म बना ही नहीं तो ड्राइंग कैसे हो गया? When 1 did the first अक्टूबर. drawing happen? October, 1st October. Yes, 1 October only. How many months left after the first drawing? You know, October, November, December. सर आप बीच में अटक गए थे सर. बोलिए, how many months left? How many months left after the first drawing? Are you getting it? I am asking you how many months left after the first drawing. Yes, Kushal. Sir, 6 months. Yes. And how many months left after the last drawing? Kushal. Sir, 1 month. So what's the formula is? 6 plus 1 divided by 2. That is the only thing that we need to do. Right? So that is how the 3.5 months is coming. आपका 6.5 डिवाइड बाय 2 नहीं आता है. पार्टी मत बिठाओ. राइट विनीत? अच्छे पार्टी बिठा दो आप. चलिए बताइए सेकंड बी का क्या आएगा एवरेज पीरियड? फटाफट बोलिए, बी का एवरेज पीरियड क्या आएगा? और सॉल्यूशन को मत देखिए, समझिए क्वेश्चन को और अच्छे से आंसर दीजिए, क्योंकि मैं जब पेपर निकालूंगा ना, आपकी टेस्ट लूंगा ना, तो आप बौखला जाओगे वरना. बोलिए बेटा, हाउ मेनी मंथ्स? क्योंकि अभी बी की बात हम करें तो ही इज विड्रॉइंग एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ फॉर 6 months. सो फर्स्ट ड्रॉइंग उसने कब किया होगा? यस विभूति? ध्यान कहाँ है विभूति आपका? आप यहीं पे होना बेटा. When B has done a first drawing, because B is withdrawing at the end of every month and our firm is starting from 1st October,
When was the first drawing of B happened, beta? विभूति अब हो बेटा Sir, हाँ 30, loudly I didn't hear you. Can anyone hear her? sir, बोलो 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 31st October. 31st October, that's right. Jainish, Jainish, Yes. No, sir. no, yes और no दोनों बोलता है जैनिश, यानी कोई तो आंसर राइट होगा. जैनिश को तो क्लास में बुला के मारना पड़ेगा एक बार तो ही सीधा होगा. जैनिश, आई एम आस्किंग यू वेरी प्लेन क्वेश्चन बेटा, whether Vibhuti's answer is right or wrong. तो सोच क्या रहे हो? Yes. When is the B is going to do the last drawing? Jainish will answer me. वो कोने में देख के सोच रहा है. अरे कोने में नहीं लिखा है, तेरे क्वेश्चन तेरे बोर्ड पे सामने है. यहाँ पे बोल रहे हैं कि B drew regularly 4,000 at the end of every month. 31st March 2020. That's true. 31st March 2020. Why it takes so much time to answer this question? अगर इतना सोचने में इतना टाइम लगा दोगे आप तो अकाउंट्स का पेपर तो आप समझ लो साफ, ऐसा कमा पेपर नहीं होगा. You need to be very quick to the answer, beta. Very quick. So tell me the formula, with the help of formula, what is the average period that you'll get? How many months left after the first drawing? Jainish? You know? कितने months बाकी है? 5 months. विनीत मार खाओगे, कैमरा बंद कर दिया. Yes. Yes, true. And how many months left after the last drawing? One month. कहाँ से 1 month? 31st March. लास्ट डेट को तो आपने विड्रॉ किया बेटा. लास्ट डेट को विड्रॉ करोगे तो 1 month बाकी रहेगा क्या? कुछ भी नहीं, जीरो. So the formula says 5 plus 0 divided by 2. That is how many average period? कितना आएगा? Sir, 2.5 months. Yes, 2.5 months is the average period. Similarly, now I want Hetvi to answer the third question. The C drew regularly 4,000 in the middle of every month for the 6 months beta. What is the average period? Can you tell me the answer? Three months. How come? What's the formula? What's the first formula you got it? Equation put up karo. How many months left after the first drawing? Kit- 5.5. Yes, very true. 5.5 months. And how many months left after the last drawing? Last drawing कब हुआ होगा आपका? In the mid of the March? Yes, how many months left, beta, of the last drawing? 1. No, 1 One. month is not left. Very wrong. 1 month is not left. Shubh, how many months left of the last drawing? Sir, 0.5. 0.5 months. आधा मंथ ही बाकी था ना, क्योंकि फर्स्ट विड्रॉल हुआ आपका मिड ऑफ द अक्टूबर में, उसके बाद 5.5 मंथ, क्योंकि अक्टूबर का आधा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5.5, और लास्ट विड्रॉल कब हुआ? मिडिल ऑफ द मंथ का मतलब लास्ट मंथ का मिडिल यानी मार्च का 15th ऑफ डेट,
तो कितना मंथ बाकी रहा? आधा. So your equation would be 5.5 plus 0.5 divided by 2. That is 6 divided by 2. That is how the 3 comes. Are you getting it, Hetvi? Yes, beta. चलिए. Now on the basis of this, you are going to find the interest. Rate of interest कितना है? 5% per annum. Right? ओके, टोटल ड्राइंग कितना होगा ए बी एंड सी का? क्योंकि सबने 4000 विड्रॉ किया है 6 महीने के लिए. सो व्हाट इज द टोटल ड्राइंग ऑफ ऑल ऑफ दिस? यस शुभ? सर 24. यस 24,000. सो 24,000 का 5% निकालो पहले तो. सो व्हाट इज 24,000 का 5%? 10% 2400 होता है. 5% 1200, आधा 2400 का. राइट? 1200 into average period divided by 12. बात खत्म. So 1200 into 3.5 divided by 12, that is 350. 2.5 divided by 12, 250. 3 divided by 12, 300. That's the answer. समझ में आ रहा है सबको? Yes, कुशल? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Let's do the another one. यहाँ पे पूछा गया है आपको कि if the date of withdrawal is not given, very important this situation. और जिसको आप पत्थर की लकीर मान के चलो. कुछ नोट्स ऐसी आएगी हर एक चैप्टर के अंदर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो एनी टाइम अगर ऐसा होता कुछ सम में डेट आपको नहीं दी होगी. सो इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 months ऑन एवरेज बेसिस. अगर आपको डेट नहीं दी है, कब विड्रॉल किया उसकी डेट नहीं दी है, तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एवरेज बेसिस पे. समझते हो उसका? 6 महीने के एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ राकेश एट 10% per annum for the year ended 31st March 2020 in each of the following alternative cases. पहला बोला है केस 1, if his drawings during the year were 30,000. अभी ऐसा बोला है कि drawings during the year were 30,000. during the year यानी कब किया, वो डेट आपको मिला है, यहाँ पे लिखा है केस 1 में. किसी कोई बताएगा मुझे डेट लिखा है कि नहीं लिखा है? ड्यूरिंग द ईयर बोला. ड्यूरिंग द ईयर यानी कभी भी हो सकता है. और अगर कभी भी हो सकता है, अगर आपको डेट नहीं मिली है, तो आपको क्या करना है? एवरेज 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है. तो केस 1 में अगर आप देखोगे तो उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा? 30,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 निकालना है आपको. समझ में आ रहा है? वाई हमने ऐसा क्यों किया है? बिकॉज द डेट वॉज नॉट गिवन. नाउ केस 2 में भी ऐसा ही है कंफ्यूजन कि वो बोल रहे हैं विड्रॉस 2500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर. ड्यूरिंग द ईयर यानी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ द एवरी मंथ, मिडल ऑफ द एवरी मंथ. ऐसा कुछ बोला नहीं है, पर मंथ बोला है. पर मंथ यानी कब? समझ में आ रहा है? तो उसमें भी अगर ऐसा बोला है तो आपको अगेन एवरेज पीरियड के हिसाब से 6 महीने का एवरेज बेसिस निकाल के ही चलना है. तो आपको यहाँ पे भी 6/12 करके ही इंटरेस्ट आएगा. समझ में आ रहा है? एग्जाम में ये कंफ्यूज करेंगे आपको. आई एम रिपीटिंग इट. एग्जाम में ऐसे सम, पेचीदा सम आपको कंफ्यूज करेंगे. सो रिमेंबर बेटा, व्हेन द डेट इज नॉट गिवन, अगर आपको ड्राइंग की डेट नहीं दी है तो आपको 6 months के एवरेज बेसिस पे से आपको मान लेना है. इलस्ट्रेशन 31 को टिक करके रखिए. इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, राइट? और ये इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन सिचुएशन 8 के हिसाब से आ रहा है. सिचुएशन 8 में क्लियर बोला है कि अगर डेट नहीं दी है तो आपको ड्राइंग का इंटरेस्ट
6 महीने के एवरेज बेसिस से कैलकुलेट करना है। एक सिचुएशन 9 भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन 8 और सिचुएशन 9 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट नोट हम पढ़ लेते हैं। इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, अगर डेट आपको दी नहीं है और अकाउंटिंग पीरियड इज लेस देन 6 मंथ्स, देन इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग इज सेक्यूर्ड एट हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। यानी अगर ये केस के अंदर अगर आप 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया होता अपने बिजनेस को, तो इसका भी आधा हो जाता, यानी 3 मंथ्स का हो जाता। समझ में आ रहा है? यहाँ तो ऐसा बोला नहीं है कि ये ड्यूरिंग द यानी पूरा साल ही है यहाँ पे तो, पर अगर ऐसा बोला होता कि अगर हमने बिजनेस ही 1 अक्टूबर को स्टार्ट किया, जैसे कि लास्ट इलस्ट्रेशन में हमने दिखा है कि यहाँ पे बिजनेस ही लेट स्टार्ट हुआ था, राइट, 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था। अगर वैसी चीज अगर यहाँ पे होती लेसन 31 में, तो आपको आधे साल का इंटरेस्ट भी नहीं, पर 3 मंथ्स का आधे का भी आधा हो जाएगा। सिर्फ 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ही लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस, एवरीवन इज गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now comes the situation 9. That's another important situation. So when the rate of interest is given without the word per annum, very very important, आपको P डॉट A डॉट ऐसा वर्ड नहीं दिया है, ऐसे लिखा है पर annum नहीं लिखा है, then interest is charged without considering the time factor. पर annum वर्ड जहां पे नहीं आता है, तहां वहां पे टाइम फैक्टर कंसीडर किए बिना ब्याज निकाल देना, यानी पूरे साल का निकाल देना है आपको। पर अगर पर एनम लिखा है, राइट, जैसे यहाँ पे लिखा है 10% पर एनम, तो एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, और डेट नहीं लिखी है, पर एनम लिखा है और डेट नहीं लिखी है, तो एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। और पर एनम लिखा ही नहीं है, जैसे कि यहाँ पे देखो 10% लिखा है, 10% पर एनम नहीं लिखा है, क्या लिखा है? सिर्फ 10%। तो अगर 10% ही लिखा है, तो आपको पूरे साल का निकाल देना है विदाउट कंसीडरिंग टाइम फैक्टर। समझ में आ रहा है? यस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. Remember, interest on drawing is an income for the firm, and hence it is credited to P&L appropriation account. On the other hand, interest on drawing is a loss to a partner, and that is why it is debited to capital account. अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो, या फिर करंट अकाउंट पे डेबिट करना पड़ेगा, ये आपको पता ही है। सो जर्नल एंट्री हम देख लेते हैं। जर्नल एंट्री वेरी इजी, वी नो द जर्नल एंट्रीज, यस्टरडे आल्सो वी लर्नड इट, अगेन वी आर सीइंग इट। अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है, तो आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री कहां से रेज होगी? करंट अकाउंट से। तो एंट्री आएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट्स अ फर्स्ट एंट्री। एंड सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पे क्लोज होता है? P&L अप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड पे, राइट। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L अप्रोप्रिएशन। कंबाइंड एंट्री पास नहीं करनी है, इसलिए मैंने क्रॉस मार दिया है। ऑल्टरनेटिव एंट्री, कंबाइंड एंट्री पास मत करना। याद रखिए सीबीएसई में जितनी ही सेपरेट एंट्रीज आप पास करोगे, हर एक एंट्रीज का स्टेप मार्किंग होता है, तो सेपरेट एंट्रीज के सेपरेट मार्किंग मिलेंगे आपको। कभी भी जल्दबाजी में कंबाइंड एंट्री पास करने की मत सोचना। विभूति सोच रही है, जाग रही है ना विभूति? नेक्स्ट, कैमरा बंद कर दिया, सो रही है बोला था। नेक्स्ट, अगर पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, देन व्हाट? Then partners capital to interest on drawing. Vibhu, to keep your camera open, stupid. Partners capital to interest on drawing. That's the first entry. And the closing entry will remain the same. क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में हर एक चीज कहाँ जाती है? कैपिटल अकाउंट में ही जाती है। और सेकंड एंट्री क्या आएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L अप्रोप्रिएशन। सेकंड एंट्री विल रिमेन द सेम। समझ में आ रहा है? Yes, sir.
If you're not understanding, please raise your hand and ask me the question. Feel free to ask me any point of time. Let's start with lesson 33, right? And let's see to it how we get to an answer. Arun and Aurora were partners in a firm, sharing profits in the ratio of 5:3. Their fixed capitals on 1st April 2010 were, अरुण का फिक्स कैपिटल था 60,000 एंड अरोरा का था 80,000. इसका मतलब क्या है? ये वर्ड जब आ गया फिक्स कैपिटल, उसका मतलब कौन सी मेथड हम यूज करने वाले हैं? फिक्स कैपिटल मेथड, राइट? यानी दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और करंट अकाउंट भी बनेगा. दे agreed to allow the interest on capital at 12% per annum and to charge drawings on drawings is 50% per annum. यानी interest on capital, interest on drawing बता दिया है. Profit of the firm for the year ended 31st March 2011 before all the above adjustments was 12,600. अभी यहाँ पे दोनों चीज आ रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है, सम कंबाइन हो रहा है. और एडजस्टमेंट से पहले, सभी एडजस्टमेंट से पहले आपका प्रॉफिट कितना है? 12,600. ये कौन सा प्रॉफिट है? Which profit is this? It is? Which profit is this? Net profit. Yes, it's a net profit. Now, drawings made by Arun were rupees 2,000 and by Aurora 4,000 during the year. What do you mean during the year? Per annum का वर्ड है और ड्यूरिंग द ईयर वर्ड आया है. देखो यहाँ पे डेट दी है, कब ड्राइंग किया. यहाँ पे आपके इंग्लिश की टेस्ट पहले होगी, अकाउंट्स की टेस्ट बाद में. ये ड्यूरिंग द ईयर वर्ड पढ़ना भूल गए ना तो आप गए. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रॉन्ग आएगा तो पूरा का पूरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन पानी में, राइट? और ऐसा ना हो इसीलिए आपको ये वर्ड्स को ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो. ये वर्ड क्लियर बोलता है आपको कि ड्यूरिंग द ईयर का मतलब मैंने बोला ना, ड्यूरिंग द ईयर वर्ड है और पर एनम वर्ड है, तो हम इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे? Yes, if the per annum word is there and during the year word is there, the interest we are going to charge. क्योंकि यहाँ पे देखो per annum का वर्ड है और साथ में during the year का भी वर्ड है. So interest will charge for the whole year or for the half a year? Yes, Shubh? For the half a year. half Half year. year. Right? Remember this. और इसीलिए सम आपको बीच में बहुत सारे सम होंगे, बहुत सारे चैप्टर के सम्स होंगे, इसमें बीच में ऐसा सम एक डाल देंगे तो आपको ये ड्यूरिंग द ईयर वर्ड पढ़ना भूल गए तो आप गए काम से. प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अरुण एंड अरोरा, शो योर कैलकुलेशन क्लियरली. चलिए अभी आप और कुछ मत कीजिए, पहले सिर्फ इंटरेस्ट निकालिए आराम से, राइट? सबसे पहला इंटरेस्ट हम कौन सा निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे. चलो निकाले, कितना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? यस विनीत. सर अरुण का 7,200 और अरोड़ा का 9600. परफेक्ट. क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई मच नहीं है तो ये बराबर है, उसमें हाफ ईयरली नहीं. ड्राइंग्स की डेट मेंशन नहीं है, राइट? यहाँ पे तो डेट मेंशन है. देखो कैपिटल की डेट तो मेंशन है, 1 अप्रैल का कैपिटल था ये, तो इसमें तो कोई मच है नहीं. मच किसमें होगा? ड्राइंग्स में. क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स में डेट नहीं दी है, तो अभी ड्राइंग्स का 15% इंटरेस्ट निकालो, बट हाफ ईयरली का निकालना. कितना आएगा बताइए?
Yes, Kushal. Sir, Arun ka 150 and Aroda ka 300. That's true. Very true. 150 and 300 हाफ ईयरली का निकाला है हमने. चलिए, सबसे पहली बात तो अभी हमको ये देखनी है 12,600 उनके पास अवेलेबल प्रॉफिट है. क्या हमारे पास 12,600 का अप्रोप्रिएशन है? 12,600 में अभी 450 और जोड़ देंगे हम. जोड़ेंगे ना इंटरेस्ट ड्राइंग का. यानी हमारे पास पैसा कितना हो जाएगा अभी? 12,600 का एक तो है और 450 जोड़ देंगे. 150 प्लस 300 जैसे बताया मुझे इंटरेस्ट ड्राइंग मिला के, तो हमारे पास पैसा हो जाएगा 13,050. अभी ये हमको देखना है कि क्या अप्रोप्रिएशन का 13,050 का ही है या ज्यादा है. अरोरा का कितना है? 9600 जैसे विनीत ने बताया. और अरुण का कितना है? 7200. कितना हो रहा है टोटल अप्रोप्रिएशन बेटा? 16,800 का तो अप्रोप्रिएशन हो रहा है, राइट? समझ में आ रही है, राइट? Yes, तो अगर sir. हम ध्यान से देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो दे देंगे हम पहले, बराबर है 450 के हिसाब से. उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई गल नहीं है. पर अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, राइट, तो लॉस होगा. और यहाँ पे लिखा है क्लियर सम में मेंशन्ड है कि द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इंकर्स अ लॉस. यानी वो तो चार्ज की तरह देना है हमको, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको देना ही देना पड़ेगा, भले ही आप लॉस करके खड़े क्यों ना हो जाओ. तो लॉस कितना होगा ये भी हमको देखना है. सो लेट्स सी. सो 12,600 और ये कितना है? 16,800 का अप्रोप्रिएशन. कितना डिफरेंस है 12,600 16,800 में? 4,200 का डिफरेंस है. कितना डिफरेंस है? 4,200. तो 4,200 का लॉस है. इफ यू डिडक्ट 12,600 out of that, you get the net loss of 4,200. समझ में आ रहा है? Now this 4,200 का लॉस हमको ट्रांसफर करना है. किसको ट्रांसफर करना है? अगेन ये ट्रांसफर होगा पार्टनर के करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, इसीलिए हर एक चीज ट्रांसफर होगी करंट अकाउंट में. समझ में आ रहा है? इन विच रेशियो? रेशियो भी दिया गया है आपको 5:3 में. तो 4,200 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है? 8 5 are 40, 8 2 are 16, 40, 8 5 are 40, that is 525 होता है. डिवाइड बाय 8 करोगे तो 525 आया, राइट? 525 इंटू 5 करो और 525 इंटू 3 करो, तो 525 इंटू 5/8 एंड 3/8 इंटू 5 करोगे तो आपको आंसर्स आएंगे. इन्होंने नेट अमाउंट डाला है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने का नेट अमाउंट डाला है. आपको नेट अमाउंट नहीं डालना है, आपको अलग अलग भी डाल सकते हो. इन्होंने नेट कर दिया है, इसका सीधा माइनस किया है और नेट करंट अकाउंट में डाल दिया है. आप क्या कर सकते हो? लॉस आया 525 इंटू 5 कर दो, कितना आता है? 525 इंटू 5 2625, राइट? और कितना आता है उसका? क्योंकि उन्होंने 1575. हाँ 1575. उन्होंने क्या किया है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ये बाकी का सब अमाउंट निकाल के उन्होंने 3750 पर अटका दिया है 450 माइनस करने के बाद, राइट? और उसके बाद उन्होंने दिया है, राइट? क्योंकि 450 तो हमको देना पड़ रहा है ना एज अ पार्टनर, और फर्म को मिलेगा 450, तो नेट अमाउंट 3750 पे डिवाइड होगा. तो डायरेक्ट 3750 को डायरेक्ट डिवाइड कर दिया है. सो इन आइदर ट्रीटमेंट यू विल बी फाइन. ये ट्रीटमेंट भी फाइन है, वो ट्रीटमेंट भी फाइन है, राइट?
यहाँ पे उन्होंने एक और चीज मिस्टेक की है, राइट, कि उन्होंने पीएनएल को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं लिखा है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, बिकॉज वो चार्ज है, और इसीलिए ये कहाँ जाएगा, पीएनएल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा, बराबर है, और इसीलिए इन्होंने यहाँ पे दिखाया नहीं है। एक्चुअली उनको दिखाना चाहिए, दिखाते तो अच्छा रहता है, आपको भी समझ में आ जाता। क्लियर है? यू अंडरस्टैंड व्हाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट शोन इन हियर, बिकॉज इट्स अ चार्ज, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, क्लियर कट लिखा है। चार्ज कैसे समझ में आया हमको, बिकॉज इट विल बी अलाउड इवन इफ अ फर्म इंकर्स लॉस, तो आपको अलाउ करना ही है, इसीलिए वो चार्ज है, और इसीलिए यहाँ पे नहीं दिखेगा, वो कहाँ दिखेगा, पीएनएल में दिखेगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. 34 करते हैं। Now this sum shall we do on the whiteboard? This is again a comprehensive. अभी ये सब sums जो आ रहे हैं आपके पास, वो comprehensive sum आ रहे हैं। comprehensive यानी बहुत सारा मरी मसाला सब साथ में आ रहा है। आपने जो भी समझा अभी तक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पास कैपिटल एडजस्टमेंट्स, वो सब कुछ साथ में आ रहा है, राइट? Fine. What I'm doing is I'm keeping it in here. But let me see the sums first. कैसे sums आपको है, मुझे एक बार देख लेने दीजिए, बाद में मैं ये सम करता हूँ। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आपने कहाँ तक किया, 40 तक किया, राइट? ओके, आज एक काम करो, 41, 42, 43, 3 sums you do it today, right? Tomorrow we are going to do the comprehensive sums, not today. This is a comprehensive sum, so I'm going to do on the Excel, or I'm going to do on the whiteboard also, but not today. Tomorrow we'll do it, right? The very first thing I'm going to do the comprehensive sum, but today you completed 3 sums, and by 5:05, 5:05 को हम मिल रहे हैं